یہ نصف صدی کا قصہ ہے تو 4 برس کی بات نہیں. گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہے محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. گڈ مارننگ. ایک نئی انرجی کے ساتھ کرتے ہیں نئے دن کا آغاز. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میری انرجی ہے بہت زیادہ, چونکہ میں نے بڑا بے صبری سے انتظار کیا ہے اس دن کا. میری بھی انرجی زیادہ ہے شعیب, بیکاز آف می مے بی. آف کورس. دیکھیں آپ, ایک اچھی وائب ہوتی ہے جس کو کریٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ اچھی وائب ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ہم کہتے ہیں نا جی وہ وائب جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اب بہت سارے لوگ ظاہر ہے یہ انرجی ہم آپ تک ٹرانسفر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اٹھ جائیں. اس وقت جتنے لوگ سو رہے ہیں اٹھ جائیں, کیونکہ آج سے ایک نیا سفر شروع ہونے لگا ہے. اور اس خوبصورت سفر کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو ہم نے آغاز میں بھی کہا کہ بڑا طویل سفر ہے لیکن بڑا خوبصورت سفر ہے. اس نے نئی نسلوں کو منزلوں کی راہ دکھائی ہے, روزانہ ایک نئی آپ کو انرجی دی ہے, اور اسی انرجی کو ہم کنٹینیو کریں گے, اپنی انرجی اس میں ایڈ کریں گے. اور جب ہم اس سفر کی بات کرتے ہیں, رائزنگ پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو آپ سب جانتے ہیں, بلکہ ہم بھی جانتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے ہمارا بچپن وہ بھی جڑا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ, اس شو کے ساتھ, جو چاہے پھر صبح بخیر کے نام سے ہو, چاہے پھر بریک فاسٹ ایٹ ہوم کے نام سے ہو. اور جب ہم بہت سے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے میں سبین بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے اس سفر کو آگے بڑھایا تھا. ایگزیکٹلی, روشن پاکستان. روشن پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں صرف اور صرف ایک نام آتا ہے, وہ ہے جی مستنصر حسین تارڑ صاحب کا نام, کہ کس طرح سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اس شو کی, اور اب جو ہے وہ پی ٹی وی کی اس لیگیسی کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر شاید بہت زیادہ ذمہ داری آ چکی ہے, کیونکہ شعیب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج کا دور ہے اس میں لوگوں کو کنیکٹ کرنا ظاہر ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مشکل ہے پرانے دور سے, یا پھر ہر دور میں یہی لگتا ہے کہ اس دور کے لوگوں کو کنیکٹ کرنا مشکل ہے. شاید ہر دور کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں. تو آج کے دور کی اگر ہم بات کریں, ہم سب جانتے ہیں اٹینشن سپین بہت کم ہے سب کا, تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ شوز کرنا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم نارملی ہم کیا دیکھتے ہیں مارننگ شوز کو لے کر یا بریک فاسٹ شوز کو لے کر, وہ اتنی جلدی نہیں ہوتے, 9 بجے 10 بجے. لیکن ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کو وہی صبح 7:30 بجے کنیکٹ کرنا ہے باقی دنیا کے ساتھ. جاگے بہت سارے لوگ شعیب آلریڈی بھی ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے, کیونکہ اسکول ہوتے ہیں بچوں کے, کالجز ہوتے ہیں, تو ہم جو ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بریک فاسٹ شو ہے کہ آپ اپنا ناشتہ کر رہے ہو, آپ اسکول کی تیاری کر رہے ہو, کالج کی تیاری کر رہے ہو, آفس کی تیاری کر رہے ہو, امی آپ کا ناشتہ بنا رہی ہے, وہ بچپن کی ساری یادیں, وہ کس طرح سے ہم مجھے لگتا ہے میں خود اس پرانے دور میں شعیب آپ کا بچپن, وہ صبح کے اسکول جانے سے پہلے بیگ ٹانگا ہوا, لیکن وہ کارٹونز دیکھنے اور پھر جانا ہے. مستنصر صاحب کس طرح سے ہمیں کارٹونز دکھاتے تھے, اور روشن پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہمیں انتظار ہوتا تھا وہ کارٹون سیگمنٹ کا ہوتا تھا کہ کب وہ ایپیسوڈ لگے گی. اور شعیب جب 10 منٹ گزر جاتے تھے تو اس کے بعد ہمیں ہوتا تھا بھاگو جی اسکول ہے, اور اس سے مطلب جلدی لگ جائے ٹائم جو ہے نا, وہ میچ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیگیسی کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے, اور کس طرح سے ہم نے آپ لوگوں کو جوڑے رکھنا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا شو ہے, رائزنگ پاکستان آپ کا شو ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اس شو کو ڈیزائن کریں کہ کیا نیا لا سکیں, کہ آپ لوگ ہم سے جڑے رہیں, ہم آپ لوگوں سے جڑے رہیں. تو اس میں آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. ضرور ہمیں بتائیں کون سے سیگمنٹس ہیں, کون سے ایسے ٹاپکس ہیں, کون سے ایسے مہمان ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں, جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس لیگیسی کو ہم اسی طرح سے آگے لے کے, کیونکہ رائزنگ پاکستان ایک فیملی کا نام ہے. ایبسلیوٹلی. تو بچوں کے لیے اس میں ہوگی تفریح, بڑوں کے لیے ہوں گی بہت زیادہ معلومات اس میں, اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ کنیکٹ, اور اسی طرح سے ہم انٹرٹین کرتے رہیں گے آپ کو اس رائزنگ پاکستان کے شو میں. فیڈ بیک جیسا سبین آپ نے کہا, تو پلیز ڈو گیو اس دا فیڈ بیک. تو آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں, جن مہمانوں سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور ہمیں بتائیں. آپ ہمیں کال کریں, واٹس ایپ کریں, ہمارے فیس بک پیج پر جا کر ہم سے بات کریں, انسٹاگرام پر جا کر ہم سے بات کریں, ہم سے کنیکٹ ہوں. اور اسی طرح جب ہم باتیں کریں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی, اور بہت نئے مزے کے سیگمنٹس ہوتے چلے جائیں گے. اور ایسے میں چونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ وقت تیزی سے آگے گزر جاتا ہے, وقت بدلتا رہتا ہے, ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے نا, ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے. اور یہ تو تیزی کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ ذرا سلو پیسڈ زمانہ اب نہیں رہا, ذرا فاسٹ پیسڈ زمانہ ہے. آپ کو بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. کانٹینٹ بڑا فاسٹ پیسڈ آ گیا ہے, تو ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ بہت فاسٹ پیسڈ کانٹینٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. اور اگر میں اپنے اور سبین کی بات کروں تو ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک سفر, جو کہ آپ کا تو اسی جگہ سے پی ٹی وی ہوم سے, بہت سارے لوگ, میری تو بہت ساری یادیں اسٹوڈیو کے ساتھ, اس سیٹ کے ساتھ, اس شو کے ساتھ. تو ظاہر ہے میرے لیے ایک بہت الگ سی فیلنگ ضرور ہے. لیکن شعیب دیکھیں,
हमेशा हम ये कहते हैं कि पीटीवी के साथ हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे Yes. आप किसी भी कैपेसिटी में काम करें या आप Absolutely. उसको देख भी रहे हो। सो उसी लिहाज से हम उसी तरह से कनेक्टेड हैं, उसी तरह से वही यादें हैं। और पीटीवी की जब बात होती है तो पीटीवी के लिए हमेशा कहा जाता है रवायतों का अमीन है, तो उन्हीं रवायतों को हम आगे लेकर बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चले, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक बहुत ही जबरदस्त मेहमान शख्सियत से हम करवाएंगे। अच्छा, नाम लिए बगैर अगर थोड़े से मैं टीजर देना शुरू करूं, सबीना, हम जरा लोगों से सवाल करते हैं क्या उन्होंने गेस किया। सो डेट ऑफ बर्थ उनकी 14 अगस्त। ओके, आधे पाकिस्तान के वैसे नहीं, आधे पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन अच्छा वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई। 1 जनवरी और 14 अगस्त। 14 अगस्त। लेकिन बड़े अच्छा, खुशकिस्मत लोग हैं। 14 अगस्त की डेट ऑफ बर्थ है। पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में बहुत उन्होंने काम किया, पाकिस्तान में उन्होंने नाम कमाया। तकरीबन 3 दहाइयों का उनका पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री में सफर है, ना सिर्फ ड्रामे बल्कि फिल्म्स, बल्कि होस्टिंग, रियलिटी शोज, गेम शोज, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत जबरदस्त अंदाज से और किया है। शोएब क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हर काम किया है, बिल्कुल। होस्टिंग भी की है और Yes. ऑब्वियसली जिस तरह से देखा जाए तो हमें कहते हैं ना एक एक्टर है, एक होस्ट है, और एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हो तो उससे मुलाकात करके बात करके बहुत अच्छा लग रहा होता है। मेरा ख्याल आप बता देते लोगों को। नहीं, अभी ताकि नहीं, लोग नाम समझ नहीं रहे हैं ना। बताएंगे। अच्छा। टीजर हमने आपको दिया है, अगर आपको लगता है कि आप पहचान गए तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें अपने फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो लेट्स सी आपने गेस किया है या कि गेस अभी नहीं किया है। तो गेम्स भी खेलेंगे उनके साथ, मजे मजे की बातचीत होगी, पीटीवी से उनका जो सफर का आगाज हो उस पर भी बात करेंगे, उनका बचपन उस पर भी बात होगी, और मौजूदा दौर में क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं इस पर भी बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, यानी राइजिंग पाकिस्तान के साथ। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम। डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा टूटा फूटा, आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा, ये किया, लग गया। हाँ पुत्र, ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। वाओ, इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा दादा मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक ऐसे सफर की तरह है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस इल्म को मजीद रोशन बनाने के लिए आया है आप लोगों के लिए स्पेशली अज़्म आलीशान सीजन 2, नए फॉर्मेट और नए चैलेंजेस के साथ। इसमें होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज का इम्तिहान, और होंगे बहुत से इनामात जो लेके जाएंगे अपने साथ कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस। देखना ना भूलिएगा अज़्म आलीशान, सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम। मौत
ये मेरा सबसे काबिल एतमाद हथियार है। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून की। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ वो नहीं होती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, जो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन, न दरूद, न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज लगा कर। लेकिन साईं, मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात ने पागल कर दिया। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। वैसे इतनी सारी जो हमने हिंट्स दी थी बहुत सारे लोगों ने पहचान मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन आप बड़ी बुरी तरह मुझे उन्होंने खुद कह दिया है कि जो आपने हिंट्स दिए ऐसे मैंने भी नहीं पहचानना था अपने आप को। तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने ज्यादा हिंट्स नहीं अब दिया। देखते हैं आपको माफी मिलती है आज की, आपको माफी नहीं मिलती है, क्योंकि अब वो ऐसी हस्ती है जिनके बारे में ज़ाहिरा आप बात जब कर रहे होते तो अब समझ नहीं आती ये बात करेंगे ये बात करेंगे। नहीं, मैं इतना बताता तो आप फौरन पहचान जाते, तो मैं चाहता था आप ना पहचाने ना, हम तारुफ करवाएं। हाँ तारुफ करवाएं फिर। अच्छा जी, क्योंकि मैंने इससे पहले क्या जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि 3 दहाइयों का सफर इनका टेलीविजन के साथ। हमने होस्टिंग की बात भी की, ड्रामे की बात की, फिल्म की बात की, वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। अच्छा, हर किरदार उन्होंने निभाया और बखूबी निभाया है। मैं अगर कुछ ड्रामा का नाम लूँ यहाँ पे तो ड्रामा कर लो, मतलब उसमें जो उनका एक किरदार था वेरी चैलेंजिंग रोल, आई मस्ट से दैट। वो चाहे फिर एक कोई हसीन लड़की का किरदार हो, वो चाहे मजलूम लड़की का किरदार हो, वो चाहे कोई को बहुत चैलेंजिंग सा रोल हो। अच्छा, वैसे जो बड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स लेती है और उसको बखूबी निभाती है, बड़ी अच्छे से कि उस कैरेक्टर में ढल जाए कि घर बैठी कोई भी लड़की है वो उस कैरेक्टर से रिलेट कर सके। क्योंकि आजकल जो हम बात कर रहे थे ना हमेशा से कि लोग बस कहते हैं अच्छा काम आया तो बस काम आ रहा है जी हमने काम करना, नहीं, चूज करना और उसके बाद क्वालिटी को मेंटेन रखना, वो भी इतने सालों तक, वो एक ज़ाहिर बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बात कर रहे हैं जनाब, हमारे साथ मौजूद है मारिया वास्ती। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अर्ली राइजर? नहीं आपके लिए खास तौर पे आपके थैंक लिए। यू। मैं सोई नहीं, आप लोगों ने मेरी नींदें हराम कर दी। ये जुमला तो वापस ले लें, ऐसे तो ना करें ना, नींदें हराम ना करने वाली बात ना करें। क्या करूं, सोने नहीं दिया आपने मुझे। एक्साइटेड हाँ, एक्साइटमेंट में फिर ठीक है, फिर ठीक है। मारिया, पीटीवी के साथ ज़ाहिरा आपके सफर का आगाज हुआ, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि यूं तो कई बार ये सवाल आपसे हुआ होगा, अच्छा कैसे आगाज हुआ, अच्छा क्या चैलेंजेस, बट स्टिल हम चाहते हैं कि थोड़ा से हमारे नाज़रीन के लिए आज फिर से छोटी सी अगर एक बात कर लें आपके पीटीवी के साथ जब आगाज की बात करते हैं तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, अ सेंटेंस और अ वर्ड और समथिंग? पीटीवी के साथ आगाज आई मीन एक बाय चांस ही हुआ, लेकिन मुझे जैसे आप अगर पीटीवी का नाम लेना तो मुझे एकदम से वो स्टूडियोज विद अ लॉट ऑफ पीपल, चहल पहल और आबाद स्टूडियोज एंड यू नो अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जो आप ख्वाबो ख्याल रखते हैं, लेकिन उन लोगों को देखा, उनसे सीखा, उनके साथ काम किया। सो वो एक बहुत मेरे लिए जो है ना वो एक that is a very very important time in my life. Yeah, it's very precious to me. Or I started with a single play. It was वो जो स्पेशल प्लेस आते थे सिंगल प्लेस, तो उससे आगाज किया, उसके बाद फिर चल सो चल सफर, जैसे आप कह रहे थे ना वक्त तेज है। हाँ। 8 जो है वो 7 बजे बज जाते हैं तो
اور واقعی پتہ نہیں چلا. You know, I worked and I worked with some amazing people. اس سینٹر کے ساتھ یادیں آپ کی ہوں گی کتنی عرصے بعد یہاں اسلام آباد میں میں نے بہت کام کیا. میرے سم آف دا جو سیریلس تھے جو بہت ہٹ گئے وہ یہاں سے تھے. ایک تھی گڑیا اور پھر some other plays I did. I worked from all stations. You started from Lahore, right? I started from Lahore, but I worked a lot. یہاں پہ میں نے اسلام آباد بہت کام کیا, پشاور اینڈ کوئٹہ, کراچی, ہر جگہ. تو پی ٹی وی کے چکر میں ساری جگہ گھوم پھر لیا آپ نے. چکر میں چکر. سو کوئٹہ, لاہور, کراچی, اسلام آباد. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں آتا ہے, کس شہر میں ان چاروں میں سے؟ سینٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں شہر کی بات کر رہا ہوں. کہاں پر جانا, جہاں پہ اپنے جیسے لوگ ہوں تو وہاں پہ مزہ آتا ہے نا. جہاں پہ آپ بور ہو رہے ہو وہاں پہ مزہ نہیں آتا. تو بس جہاں جہاں اپنے دوست ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے نکل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نو بٹ آئی ایم فرام لاہور. تو لاہور اسلام آباد تو اتنا فرق نہیں محسوس آتے جاتے رہتے ہیں. فرینڈز اب کیا کریں, وہ دوست ہیں, وہ ہر جگہ ہیں. تو یو نو اینڈ کراچی, آئی بین ان کراچی فار دا لانگسٹ. اور لیکن میں نے باقی جگہ جیسے کوئٹہ, بلوچستان یا پشاور وغیرہ, I mean I've traveled a lot because of ہمارا پہلے آؤٹ ڈور بہت ہوتا تھا. اب تو کمروں پہ بند کر کے آپ آ گئے, چائے پیئیں گے, فریش ہو جائیں. یہ 3 لائنیں جو جملے ہیں نا. اب یہ بات ٹھیک ہے ماریا کہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے لوگ. آؤٹ ڈور کی جب آپ بات کریں, اٹس ویری چیلنجنگ, موسم اینڈ بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کی اسکرین چینج ہو جاتی ہے نا. I mean it's ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں. یا تو آپ پراپرلی پھر اسٹوڈیو میں اس طریقے سے کام کریں, اور اگر لیکن یو نو جیسے کراچی میں ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس آؤٹ ڈور اتنی زیادہ ہے نہیں. یو نو دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ آر انوالوڈ. تو بٹ یس وین یو, ہم بہت, پاکستان از بیوٹیفل. ہم کہاں نہیں جا کے ہم نے کام کیا. آئی ہیو سین بیوٹیفل پلیسز. سو نارتھ یا ساؤتھ زیادہ مزہ کہاں پہ آتا ہے؟ سب جگہ آتا ہے, سب آتا ہے. خوبصورت جگہ ہوگی, صاف ستھری ہوگی, وہاں مزہ آئے گا. ایک شہر کا نام انہوں نے کہا نہیں لینا, کوئی اور شہر. وہ پھر زیادتی ہے نا. I mean یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ بات سب کے فلیور اور یو نو الگ الگ ہیں. یو نو یو کانٹ کمپیئر, کیسے کر سکتے ہیں. اب مجھے کوئی کہے کہ کون سا ہوسٹ اچھا ہے تو میں کیا یہاں کہوں پہ گی, اب کہہ دینا کہ ٹھیک ہے وہ اچھی ہے. ایک اوچھا ہے, ایک اچھی ہے. اچھا کیوں, میں نے ایسا کیا کیا ہماری, میں تو بات کر رہی ہوں. اب کہہ کہ یہ اچھا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. یہ تو دونوں ہی چوز کرنا چاہیے, دونوں ٹھیک لگ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, دے آپ یہ ٹھیک ہے. اچھا ماریا, روٹین کیا ہوتی ہے؟ اینڈ بائی روٹین آئی مین کیا کھاتی پیتی ہیں آپ؟ کیا ایسا خاص کرتی ہیں کہ ماریا اسٹل ینگ ہے, وہی انرجی ہے, وہی وائب ہے, جیسا دیکھا ویسا ہی ہے؟ دیکھو منہ میں کیا آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور منہ سے کیا بات نکل رہی ہوتی ہے یا منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے, اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت پیاری بات ہے, پہلے تولو پھر بولو. ہاں, کیونکہ وہ جو تیر نکل جاتا ہے نا, اور جو منہ میں چلا جاتا ہے وہ پھر آپ کو پتا کہ وہ رہتا ہے, پھر اندر وہ نظر آتا ہے. سو نہیں, ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ویری 12 گھنٹے, بلکہ کئی دفعہ زیادہ بھی وی آر ورکنگ. تو اس کے اندر اس طریقے سے آپ جس طرح کہتے ہیں نا جوس اینڈ فلاں اینڈ چیا سیڈز اینڈ فلاں چیز فلاں, وہ کئی دفعہ نہیں آپ کر سکتے. بھوک لگتی ہے تو آپ کو یو وانٹ ٹو ایٹ, اور اس کے بعد پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. بٹ یا آئی ہیو ریئلائزڈ کہ میرا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ آئی کیپ آن ایٹنگ تھوڑا تھوڑا آل ڈے, تاکہ وہ جو ہے نا, وہ جو بھوک لگتی ہے نا 8 نانوں والی, وہ نہ لگے. سو دین آپ کنٹرول کر لیتے ہو. فوڈی ہے ویسے, لاہور وہ تو جینز میں ہے, پھر جینز تنگ ہو گئی ہے اتنا جینز میں. ماشاءاللہ ویری فٹ. بہت سے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہم کھائیں پیے بھی اچھی طرح, لاہوری بھی, اور بات ہوئی کہ کھانا بھی انجوائے نہ کرے بندہ تو کیا کرے. اور صحیح بات ہے, کھانے کے لیے جی رہے ہیں, اور کیا جینے کے لیے کھا رہے ہیں, دونوں. یہ اچھی بات ہے. جینے کے لیے کھانا پڑتا ہے اور کھانے کے لیے جینا پڑتا ہے. درست بات ہے. ویسے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کھانے کے لیے جیتے ہیں یا جینے کے لیے کھاتے ہیں, کیونکہ ماریا نے کہا دونوں. لیکن کیا کھا رہے ہیں یہ بھی بتا دینا, رشوت نہ ہو, حرام نہ ہو. ہاں, حلال کھائیں, اچھا کھائیں, اور اچھی ڈائٹ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ماریا نے زیادہ میں ضرور بتایا. اچھا جی, اب ذرا ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ماریا کے لیے کچھ ٹف سی گیمز اتنی ٹف نہیں ہے, فار ہر اٹس ناٹ ٹف. ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے. پتہ چلے ان کو جواب آتے ہو, ہمیں ہی نہ آتے ہو. ہمیں جواب نہ آتے ہو تو ملاقات چیٹنگ کر لوں گی پھر میں, بتا دینا نا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رائزنگ پاکستان.
अल्लाह हमारी इस हिजरत को हमारे लिए आसान फरमा। आमीन। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? हुक्म जता रही हो तो मुझ पे हद होती है। एक तो मैं तुम्हें दोस्ती करने का मौका दे रही हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो। ए हेलो, तुम कौन होती हो मुझे मौका देने वाली? मैं तुम्हें दे रही थी मौका। कितना बोलते तुम लोग, बोल के थकती नहीं हो? तुम कौन हो? चोर। ऑफिसर दिलरुबा, इस चोर का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और पीट के ना फिर छोड़ देना चाहिए, है ना? एक चोर दूसरी चोरी तब करता है जब वो पहली चोरी में पकड़ा ना जाए। और चोर चोरी से ही जाता है, हेरा फेरी से नहीं। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब मारिया वासी हमारे साथ मौजूद हैं और क्या मजे की उनके साथ गपशप हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, अब दिल नहीं था कि उनको हम तंग करते हैं कि और ये भी बताएं कि क्या तंग किया ना, नहीं ये भी बताओ। मैं बता देता हूँ जी। हमारे को टाइम थोड़ा सा हमने डिले का दिया था,
फिर हमारा प्लान चेंज हो गया एंड सो काइंड ऑफ हर के उन्होंने कहा कि फाइन चले ठीक है, आधे घंटे से क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, जो होना है वो तो हो चुका है। तो जो बंदा जाग चुका है तो फिर आधे घंटे के ऊपर नीचे करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं। बस हम इतने बेताब है कि आप आधा घंटा पहले आ जाए, है ना? बेताब तो हम थे और अच्छा हम तो काफी दिन से बेताब थे कि शो स्टार्ट हो और विद यू नो वाइब्रेंट पर्सनालिटीज, तो इसलिए मैं मजा भी आ रहा है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कुछ गेम्स खेलेंगे हम। एग्जैक्टली, तो वो अब ऑलरेडी परेशान हो चुकी हैं, अब वो कह रही हैं जो करना कर लोगे, तो हमने कहा चलो। और मेरे पे रिलाय वो नहीं कर, उन्होंने कहा कि आप मुझे हिंट ना देना, आप ठीक हिंट नहीं देते, मैं ही हिंट दूंगा, तो हिंट मैं ही दूंगा, ये तय पाया कि मैं ही हिंट दूंगा। तो हम जरा कुछ मुहावरे पूछने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सुबह सुबह इम्तिहान आप पास करेंगे, जाग जाएं सुबह सुबह हमने कहा जाग जाए, दिमाग भी जागे, और उसके बाद ज़ाहिर हम वो तो जाग गई है, बाकी भी जागे, जरा हमारे व्यूअर्स भी जागे। सो बड़ी सादा सी साइंस है, वैसे साइंस सादा होती है? साइंस सादा कभी भी नहीं, समझ आ जाए उसके लिए सादा है, उसके लिए सादा है, वरना नहीं है। सो सीन ये है कि हम कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और उन पिक्चर्स को देखते हुए मारिया ने गेस करना है कि वो कौन सा मुहावरा है। I'm sure कि she'll gonna guess it. I'm just going to try, you know, it's too early for me in the morning. चले, आज जहाँ पे आप ना गेस कर सकी तो मैं ट्राई करूंगा। पहला मैं देखती हूँ हिंट्स कैसे देते। ये अभी स्क्रीन पे है, बताइए। ये देखिए इसमें क्या ऑरेंज कलर कितना फोकस्ड है। अब ये आपको ऑरेंज कलर अंधा है और महंगा है शायद। अच्छा, हाँ लो। अभी आपको कैसे गलत हिंट्स दे रहे हैं? अंधा भी और महंगा भी है। कान इधर से कान बंद कर ले, दिमाग से चलाएं, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। चले वापस आ जाए, इतना दिखाएं जी, इससे ज्यादा मत दिखाएं, गैस करना है, इतना बहुत नहीं था। दोबारा दिखाएं, दोबारा दिखा दें। ये था क्या, ठहरो, पता ही नहीं प्रोसेस करने दें जी। अच्छा, क्या हिंट दो ना? ऑरेंज के साथ क्या ताल्लुक है इसका? अच्छा, मैंने तो जो गलत हिंट दे रहे हैं, देर से गलत हिंट दे रहे हैं वो आपको। So orange has nothing to do with this. हाँ। महंगापन का भी कोई ताल्लुक नहीं है इससे। कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन जो आपने गेस किया था वो ठीक गेस किया था। अंधा, हाँ वो तो ठीक है। और अंधा प्लस पता नहीं आंखें थी ना? कितनी आंखें थी? ये तो 2 थी और अंधा और 2 आंखें हैं। अब तो मैं भी भूल गई हूँ। कौन सा था? अच्छा बता दो। ये अंधा क्या चाहे 2 आंखें। 2 आंखें। अच्छा, वे मुश्किल था ये अंधा क्या चाहे 2 आंखें। आमतौर पे वो तुम्हें कैसे पता है? हो सकता है वो कुछ और चाहता हो। बात तो से, लेकिन निकाले मैं नहीं थे, तो इसका मतलब यही बनता है कि मैंने खुद डिजाइन की है। और ये तो मेरा मतलब हो सकता है वो कुछ और चाहता हो। तुमने पूछा है? मैं गया था पूछने के लिए। अच्छा, तो उसने जवाब नहीं दिया। वो बहरा भी निकला, तुम्हारी बात नहीं सुनी। नहीं, उसने वो मुझे गूंगा समझा। इसने खुद से जवाब भी बनाया और हिंट भी होगी। सही बात है। मेरा ख्याल है अगला मुहावरा मेरी क्लास नहीं है आज, आगे बढ़ जाए। अच्छा, आगे बढ़े, चलिए बताएं क्या है। नेक्स्ट लेकर आए जी। ये तो देखिए आसान है। बैल मुझे मार। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है जी। अगला मुहावरा, तारीफ भी करे ना, अगर एक गेस किया। ये तो बहुत आसान है। आपके आगे बीन बजाना? नहीं, मेरे आगे नहीं बजानी। भैंस के आगे? बीन के आगे भैंस नहीं बजानी। अच्छा, भैंस के आगे बीन बजा ले। चले जी, नेक्स्ट लेकर आए। 1 मिनट रुके, बल्कि यहीं पे आज सुबह क्या खाया आपने? वक्त चेंज होता है और हर किस्म की जो है स्क्रिप्ट, या जैसे आप कहते हैं कि कहानी, इमोशंस तो वही है ना, पहले भी वही इमोशंस थे, वही। अगर आप रंग देखें तो यू नो रेनबो के वही 7 रंग है और उन्हीं से सारे रंग बनते हैं, और वही इमोशंस भी वही हैं, यू नो, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, पहले भी और अब भी। हाउ वी पोर्ट्रे देम, और वो वक्त के साथ साथ कितना चेंज हुए हैं। क्या बात आप पहले कर सकते थे, क्या बात आप अब कर सकते हैं, यू नो, ये वक्त के साथ आप चेंज होता रहता है। लेकिन इंसान के पास जो इमोशन है वो तो वही है, यू नो, रिश्ते भी वही हैं। बिल्कुल। आप उनको आप कैसे डील करते हैं वो चेंज आता है। दैट इज द चेंज भी हमें जरूरत भी है उस चेंज की ना। भी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। सो वो एक है। एंड जो अच्छी क्वालिटी की चीज है, जो मैं समझती हूँ, अगर क्वालिटी की चीज है, आप किसी और चीज को समझते हो, आप किसी और, तो वो कमी होती है। क्वांटिटी बहुत सारी चीजों की हो सकती है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया में, यू नो, वो कमी होती है। सो बिकॉज ये बड़े, आई थिंक ये जो हम काम करते हैं ना, उसमें इतने सारी चीजें एक वक्त में चल रही होती है, एंड एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग एंड समटाइम्स इट डज।
سو یہ مجھے لگتا ہے میریکلز ہیں جو ہمارے جب ایک کوئی اچھی چیز بنتی ہے یا کوئی ڈراما یا کوئی گانا یا کوئی اینی تھنگ دیٹ یو ڈو. So I think these are miracles that happen. So because it's all creativity. Yes. So مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر دور کا اپنا ایک رنگ اور اپنا مزاج ہے اس کا. تو وہ I think that وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. اسکرپٹس ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے جس طریقے سے اسکرپٹس یا کہانی لکھی جاتی تھی شاید اس طریقے سے نہیں, اتنی محنت شاید ہم اس پہ نہیں کر رہے, لیکن بہت اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لائک اچھے ڈراماز بھی آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ ٹسل سی چلتی رہتی ہے, اچھی چیز بھی آتی ہے, میڈیوکر بھی آتی ہے, بری بھی آتی ہے. سو دس از ہیلدی کمپٹیشن اور چینج ہے نا, چینج از ہیپننگ. اور اگر بری نہ آئے تو ہمیں اچھی کا ایگزیکٹلی نہ ہو, برا کام آتا تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اچھا کام ہے. ماریا, کوئی ایسا رول جو آپ نے کیا اور آپ سوچتے ہو کہ ڈیو ٹو اینی ریزن نہیں کرنا چاہیے تھا, اور کوئی ایسا کام جو آفر ہوا تھا آپ نے نہیں کیا اور آپ کو پچھتاوا کیا وہ مجھے کرنا چاہیے؟ ریگریٹس نہیں, ایسا کام بہت ساری ایسی چیزیں بھی کی جن میں مزہ نہیں آیا کرنے, کیا تو صحیح لیکن بیکاز مجھے ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمس جو اچھی چیزیں ہیں جو لوگوں کو یاد بھی رہ جاتی ہے, جو ہمیں بھی کرنے میں مزہ آتا ہے, تو میں ہٹ یا فلاپ کی اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. بیکاز ہم سیٹ پر جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ہر سین کو یا ہر چیز کو آپ 100% دے رہے ہیں, اور جب آپ کو کبھی لگے کہ او مائی گاڈ دا ڈائریکٹر از ناٹ دیئر فلی انٹو اٹ, یا اسکرپٹ اس طریقے سے نہیں ہو رہا, یا ہم ایکٹرز میں کچھ کمی رہ گئی, تو جب وہ کمی رہ جاتی ہے تو وہ چیز مکمل نہیں فیل ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی گیپ رہ جاتا ہے. تو وہ جو کمی رہ جاتی ہے اس سے وہ جو پراپرلی بیبی وہ چیز آنی چاہیے تھی, جو دل کو لگنی چاہیے تھی, جو آڈینس میں سپوزڈلی ہٹ ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوتی, وہ رزلٹ نہیں آتا, اور وہ پتہ چلتا ہے, اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے آپ نے اپنا 200% دیا ہے, باقی چیزوں پہ کمی ہے, یا میں نے نہیں دیا اور باقیوں نے دیا, تو وہ جب کمی رہ جاتی ہے نا وہ نظر آتی ہے. ویری آنیسٹ, بہت مشکل کام ہے ایکٹ کرنا, یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. لوگوں کو لگتا ہے اچھا چٹکیوں کا کام ہے, شاید باقی جو گاڈ گفٹڈ ہے تو وہ کرتے ہوئے لوگوں کو بھی ایکٹرس کو عادت ہو جاتی ہے, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ بہت مشکل ہے. آؤٹ ڈور جانا, کام کرنا, پورے اس کیریکٹر میں ڈھلنا, اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آڈینس اتنا زیادہ پسند نہ کرے کہ اپریشیٹ نہ کرے کسی اور کی کمی سے, ظاہر ہے وہ چیز اتنی ہٹ نہ ہو, تو ظاہر ہے اس کا دکھ جو ہے وہ آپ کو, یو شوڈ گیو یور بیسٹ. اینڈ جب آپ اپنے آپ کو, اپنے کام کو پبلک کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے اس کو پسند کرنا یا نہ کرنا, اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں. اچھا, یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی, یہ بڑے کم لوگ سمجھ, لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے جو کام کیا بس لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. کرٹیسزم لوگوں کو ڈیل کرنا اس سے نہیں آ رہا ہوتا. یو ہیو, یا تو ہو نا آپ کی پرائیویٹ لائف ہو, ادھر سے کوئی آپ کی تصویریں لے کر باہر لگا دے, سمجھ آتی ہے کہ رانگ. جب آپ ایک کام کر رہے ہیں نا, somebody can like you اور somebody can not like, ان کا رائٹ ہے یہ, you're putting آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں نا پبلک کے سامنے, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اسے مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے, ہو سکتا ہے وہ جو بندہ کرٹیسائز کر رہا ہو وہ کوئی اچھی بات ہی بتا رہا ہو, پک دیٹ اپ اینڈ ریسپیکٹ کرنے کے لیے کہ اوپینین کا میٹ بی اینی تھنگ. اچھا, لوگوں کو بھی شعیب, لیکن میرے خیال ہے تھوڑی تمیز ضرور اس میں رکھنی چاہیے. آپ نے کرٹیسائز کس طرح دیکھا, ڈیسنٹ وہ جتنا آپ کو اصل میں جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے سوشل میڈیا ہے, یہ امیزنگ ٹول ہے ہماری. آپ دیکھیں آل دیز پلیٹ فارمز, چاہے وہ یوٹیوب ہو یا باقی سارے, یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جا سکتے ہیں. آپ ان کا کیسا استعمال کرتے ہیں وہ ہے نا. اگر آپ اپنے فون کا صرف تصویریں کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ابھی کھینچے اپنی تصویریں لگائے بھی, لیکن اس کو بیماری نہ بنا لیں. لائک آل دیز تھنگز آر فار دا بیٹرمنٹ. آپ اس کو لائک جس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی فرسٹریشن اتار رہے ہیں تو دیٹ اونلی شوز یو. بالکل ایسے ہی ہے. I remember a teacher of mine جب پتہ نہیں کیا تھا, we were going on کسی ہم ایکسکرشن پہ تھے, تو کوئی لڑکے تھے یا کیا تھے, تو وہ کوئی عجیب سی نا کامنٹس وغیرہ دے رہے تھے, تو the girls ہمارے سارے they got very upset. تو ٹیچر نے کہا کہ why are you getting embarrassed, یا تم لوگ کیوں اپسیٹ ہو رہے ہیں, جو اس طرح کی بری بات کر رہا ہے وہ اصل میں اپنی شکل دکھا رہا ہے, تو why are you getting ashamed, اور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. وہ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کہ وہ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں, اپنی ٹرین. ہاں, تو why are you getting embarrassed. تو صحیح ہے. تو جو سوشل میڈیا
آپ ضرور تنقید کریں لیکن کس طریقے سے کر رہے ہیں ایک طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ اپنے ساس کا غصہ بھی اتار دیا، باپ کا بھی، ماں کا بھی، فلاں کا بھی، ہے نا، ساری فرسٹریشن جو زندگی میں نہیں ملا وہ بھی اتار دیا کہ تمہارا تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں وہ بڑے پروگریسو ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی اپنی فرسٹریشن نہیں اتاریں گے. آپ کبھی بھی کوئی ایسا شخص جو کہ اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہو، کسی کو بری طرح سے کرٹیسائز کیا ہو، اگر آپ دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں honestly تو آپ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی فرسٹریشن. That is not my problem what you think of me. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. It's just not. You can آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. That's you know, that is your problem, not mine. سمجھداری وقت کے ساتھ آتی ہے. ہاں اتنی سمجھداری وقت کے ساتھ آتی ہے. بالکل ہمیشہ سے سمجھدار تھی، ہمیشہ سے کہ ہاں چیزوں کی سمجھ تھی یا نہیں. ہاں غلطیاں کی اور اس کے بعد سیکھا. غلطیاں تو انسان کرتا ہے، وہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے تھے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے، چلو بھی کوئی اور طریقہ دیکھتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. تو یو جسٹ فائنڈ یور وے. تو وہ جو سیکھ جائے وہ ٹھیک ہے، جو نہ سیکھے وہ غلط ہے. وہ پھر دہرا رہے ہیں. وہ تو جب آپ غلطی ایک بار کرتے ہیں نا تو وہ غلطی، بالکل جب آپ دوسری بار کرتے ہیں وہ آپ کا ڈیسیژن، وہ بلنڈر بھی ہے، وہ آپ کا ڈیسیژن ہے. یہ میں نے کیا، یہ مجھے جوتا پڑا، میں پھر جا کے وہیں پر جوتا کھا رہی ہوں، تو پھر وہ تو میرا ڈیسیژن ہے. بڑی گہری بات تھی ویسے. That's true. So ماریا، کوئی بھی اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں پریشان کرے، کچھ چاہے سوشل میڈیا پر ہو یا آپ کے انوائرمنٹ میں ہو، how do you deal? You ignore, you react, you do what? آپ مجھے کوئی ایگزامپل دے سکتے سوشل میڈیا پہ؟ اگر سوشل میڈیا پہ جس طرح ہم اکثر کامنٹس پہ دیکھتے ہیں، کچھ کوئی ایسے کامنٹس کرتے ہیں، کوئی نازیبا جملہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آپ نے بھی ایگزامپل بھی کوٹ کیا، اپنے اسکول کی بات کی. جنرلی بھی ظاہر انڈسٹری میں کہیں پر بھی یہ دس کوڈ ہیپن نا، آپ مال میں جائیں یا کہیں اور جائیں، کوئی آپ کو انکمفرٹیبل کر سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل دس؟ آپ یو ہیو ٹو چوز یور بیٹلز. آپ ہر ایک سے تو نہیں لڑائیاں کر سکتے نا. آپ کوئی ایک یا دو کوئی بڑی باتیں ایسی ہوں گی جس پہ آپ کہتے ہو کہ بھائی دس از واٹ آئی کانٹ، میں برداشت نہیں کر سکتی. باقی ساری چیزیں جو ہیں آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دو، وہ اپنی کوئی فرسٹریشن اتارا ہے، مے بی دیٹ پرسن ول فیل بیٹر آفٹر دیٹ. کوئی بات نہیں. اگر مجھے اچھا برا کہہ کے آپ کو یعنی تھیراپی چل رہی ہے آن لائن، ہاں چلنے دے پھر، ہے کوئی بات نہیں. تو آپ ہر چیز پہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، اس کو بھی ارے بھائی میرے تو تھیراپی کا بل ہی بڑا زیادہ آ جائے گا میرا. وہ نہیں. کسی کی بات کو اتنا دماغ پہ نہ سوار کرے، کوئی دماغ پہ سوار کرے تو اتنا دماغ خراب ہوگا. کسی کے دماغ پہ، کسی کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا. تو یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں ٹھہراؤ لانا اور دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا. جو آپ ہیں بس آپ ہیں. دوستیاں کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ بہت ہیں. کتنی انڈسٹری میں لوگ اکثر، ہم سچی بات بتاؤں، ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں انڈسٹری سے، ہم جب ان سے پوچھتے ہوئے کہتے ہیں ہم انڈسٹری میں دوستی نہیں کرتے. جتنی بھی ہیں دوستیاں پرانی ہیں. میں جو دوست ہیں نا، وہ دوست وہ فیملی ہوتے ہیں جو آپ چوز کرتے ہیں. اپنی فیملی تو آپ چوز نہیں کرتے نا. دوسرا یہ کہ میں ان کو انویسٹمنٹ سمجھتی ہوں. جیسے آپ گولڈ میں اور پیسوں میں اور چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں نا، تو یہ بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور یو نو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ایئرس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واٹ یو ہیو گون تھرو. تو میں اس کو ایک انویسٹمنٹ کی طرح دیکھتی ہوں. آئی چوز، اگر کوئی میرا دوست ہے یا وٹ ایور، تو that is an investment and how I want to keep that, you know. آپ اس کے کیئر اس چیز کی کرتے ہیں. اور اگر اور ٹائم tells you everything. تو ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے آپ کو میرا تو یہ بیسٹ فرینڈ ہے بھائی، مجھے تو یہ پسند آ گیا، اب اس کے ساتھ ہی میں نے کھانا بھی کھانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، تصویریں بھی ساری منہ ٹیڑھے ٹیڑھے کر کے کھنچوانی ہیں. سو just give it time. over میری جتنی دوستیاں ہیں وہ over a period of years پتہ چلا ہے کہ بالکل وقت کے ساتھ ساتھ. مریم، کوئی ایسا سوال جو کہ بہت انوائنگ سوال ہو آپ کے لیے؟ ہوتے ہیں زندگی میں کچھ ایسی چیزیں جو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ صبح پہنچ جائیں گی آپ وقت پہ؟ آج میرا آج کتنی بار پوچھا کسی نے؟ صحیح بتا رہی، یہ 8 بجے کہہ دینا، کیوں آپ نے صبح 4:30 8 بجے 7:30 بجے آ جائیں. اچھا آپ سوال کر رہے تھے. سوال یہی تھا کہ موسٹ انوائنگ کوسچن آفٹر دس وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کہ لوگ کسی شادی بیاہ میں چلی جائے، پہلا سوال کیا جائے فلانا. اکثر ہوتا ہے نا، موٹی ہوگی ہو، پتلی ہوگی ہو، مطلب مجھے بڑی اریٹیٹ کرتی ہے. جیسے کہ شادی کب کر رہی ہو؟ بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا وہ میرا بھی بچپن تھا. اس طرح کی بات. اسکرین پہ آپ ایسے، ہاں ایسے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اسکرین کی جگہ. آپ وہ رول ہے
उसके अंदर मैं कोई रोल कर रही हूँ, रोल उसमें मेकअप है, उसमें पूरी आपकी और कुछ और गेटअप है, ये हाँ, whatever। getup है। इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि लोगों को कई दफा अगर कोई तारीफ भी हो तो वो तारीफ नहीं करनी आती शायद, यू नो, दे डोंट फाइंड द राइट वर्ड। कह सकते हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये भी कह हाँ सकते कुछ भी, बट वो मे बी थोड़ा सा फ्लस्टर हो जाते हैं या कुछ, तो वो कॉम्प्लीमेंट की जगह वो, तो आई डोंट माइंड इट, अभी इससे माइंड करने की बात नहीं है, बट मैं देखती हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, और वो भी बच्ची 2 महीने की गोद में है, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। 2 महीने बच्चा तो पता भी नहीं, और वो रोता हुआ बच्चा उधर जा रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं, तो मारिया बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बातें तो ऐसी है, हम भी शुरू हो गए सवाल पे सवाल के, लेकिन वक्त जो है वो बड़ा कम है। बहुत शुक्रिया, सुबह जागी अभी वो मेन्यू में इसमें नाश्ता मंगवाना, ठीक है जी। हम जरा ब्रेक में नाश्ता मंगवाते हैं। मारिया अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस, राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मेडिगैन यू फोन। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हर दम। माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबार जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज पर। ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं, जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। ट्रूली टैलेंटेड ज़ेबा आली। ब्लेसिंग है, आई कैन मैनेज बोथ वेज। आज के शो में हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं नजीरा नूर साहिबा को। Honestly, it just takes me back into a different world altogether. ब्लैक एंड व्हाइट दौर था, उसकी मौसीकी का एक अपना फ्लेवर था। बिल्कुल। और देखने में इतना अच्छा लगता है कि आई हैव बीन एक्चुअली वेटिंग फॉर इट। सितारों का जहां। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। ये केस तो अलग में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। बिजली के झटके लगे, वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। तुम लोग के राज का शुरू मुक्त हो गया।
देखते हैं। उस हसीना का नाम है खानुम जान। आओ अपने वतन वापस चले। मैं अपने वतन में ही तो हूँ, अमर सुनार बांग्ला, भालू भाषी बांग्ला। उसका ढाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। बंगाल को ये नामंजूर है। आज इन सब के सामने अपने हाथों से तुझे सूली पर चढ़ाऊंगा। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। मोहब्बत एक आरज़ू ही से तेरे शहर के खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब हमारा राइजिंग पाकिस्तान जो है वो सुबह 7:30 बजे से आप सब हमारे साथ कनेक्टेड है। आप सब हम लोगों को देख भी रहे हैं पीटीवी होम पे और पीटीवी न्यूज की स्क्रीन पे। एब्सोल्युटली, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो। हमने इस तरह आगाज में भी कहा था कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम शो के एंड पे भी दोबारा आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि जी अपना फीडबैक दें। तो अभी जब सेकंड सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है एट अ वेरी यंग एज, यानी 4 साल की उम्र से हम उनको देखते आ रहे हैं कि किस तरह से वो हेडलाइंस बनाते जा रहे हैं। मुझे कहने में कुछ अरे प्लीज एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं हम यहाँ पे कि एक्चुअली हो गया है इस एज में लिटरली हमें so much. एग्जैक्टली हम मुझे याद है हमसे पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, माइंड में आता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या अम्मा अब्बा ने जो दिमाग में डाला था ना ये बनना है। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में हम कहते हैं ना बड़े होके हमने ये बनना है, छोटी सी उम्र में कितने सारे जो क्राउन्स है वो इन्होंने पहन लिए। फिर 4 साल के थे, पहला शो इन्होंने किया था, तो जब हम रेडियो पे देखें तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, इन्हीं मेजबानी करते रहे। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को बल्कि अपने से बड़ों को मोटिवेट बड़े भी गेस्ट कर बन रहे के होते जाते हैं शुएब, बड़े गेस्ट। हाँ तो उनका बनता है बिकॉज जाहिर है उन्होंने इस पर काम किया है। अच्छा इंग्लिश सिखाते भी हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में, यानी आई थिंक बहुत ही यंग थे, अभी भी खैर यंग है, 11 इयर्स ओल्ड, बट उससे पहले वो अंग्रेजी का सर्टिफिकेट 11 साल की उम्र में क्या बोल रहे हैं, 11 साल की उम्र में पढ़ाते हैं सिखाते हैं जी। हमें तो सीखना नहीं आता था। तो ये है वो दौर जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। ये है आज का दौर जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और किस तरह से हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और इस तरह से हमें खुद हैरान कर रहे हैं। अब तो हम खुद यंग है लेकिन हमें एक जनरेशन गैप फील होता नजर आ रहा है। मोहम्मद हसनैन पेशावर से इनका ताल्लुक के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेरी वेल। कैसे आप सुनाइए, सब ठीक? आज सुबह कोई मुश्किल परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली फाइन। एज यू नो माय एजुकेशन इज क्वाइट अ बिट टाइट, सो इसी वजह से सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल था। क्या पढ़ रहे हैं आज? आई एम करंटली डूइंग ओ लेवल्स, आई एम वेरी नियर टू डूइंग माय फिजिक्स टेस्ट। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा कहा कि इतनी ज्यादा जॉब्स कर ली हैं, सारे काम कर लिए, तो अब पढ़ भी लूं थोड़ा सा। यानी ये ऑपोजिट चल रहे हैं हमारे यहाँ, पहले पढ़ाई फिर जॉब एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने कहा नहीं पहले जरा कुछ कर लेते हैं, तो खेलने फिर नहीं भी देते लेंगे। थे, हमें तो खेलने नहीं देते थे घर से बाहर, मगर पढ़ाई मिस हो जाएगी।
मुझे इंटरेस्ट नहीं है खेलने खेलने में के लिए interest नहीं है। बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम इन माय पर्सपेक्टिव. खेलना वेस्ट ऑफ टाइम ना करें. हम तो आजकल बच्चों से कहते हैं प्लीज खेलो घर से बाहर निकल के. घर से बाहर निकल कर आप अगर कहते हैं खेलने को, सो आई डू एक्सरसाइज एंड दैट डज व्हाट आई वांट. आई फॉर एग्जांपल खेलने के लिए आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले चेस एंड अ बिट मोर, बट नेसेसरीली द ऑब्सेशन ऑफ लाइक क्रिकेट और फुटबॉल और फिर तपती धूप के अंदर बच्चे जब खेलते हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट. मैं तो मम्मी डैडी इस्लामाबाद पिशावर से आप बेसिकली. मैं पिशावर से हूँ बेसिकली, एंड इट्स नॉट दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट इट इज दैट. Like it's not like what you're trying to explain, but it is. उसने वो लफ्ज कहा भी नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन वो बाद में मुकम्मल कर गई है. Exactly. हसनैन रूटीन क्या है आजकल? Routine, I wake up quite a bit early, around 6 or 7. I get on to my day is spent mostly at my computer, by the way, because I'm doing O levels internationally online. Okay. So I work upon some of my assignments, maybe do it in the night or maybe do it early in the morning. जब वो मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 9 से मेरी फिर थोड़ी सी अपनी क्लासेस होती हैं, फिर मेरी फिजिक्स की क्लास 10-15 से शुरू होती है, एंड दैट गो ऑन अबाउट दैट. आफ्टर दैट आई हैव अ बिट ऑफ अ फ्यू आवर्स ऑफ वर्थ ऑफ ब्रेक. उस ब्रेक के अंदर मैं अपनी इस्लामिक स्टडीज और अपनी कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस जो मैं सीख रहा हूँ उनकी स्टडीज को. कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? आई एम करंटली लर्निंग जापानीज, Okay. तो उसकी स्टडी को अपने साथ लेकर जाता हूँ मोस्टली that, and if not I relax a bit. जापानीज क्यों सीख रहे हैं वैसे? You understand that every single language is नहीं हर different. लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे आपका दिमाग बहुत जखेज भी होगा, दैट अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाई जापानीज स्पेसिफिकली? I'm coming to that. बहुत slow थे ना? yeah. The point is that Japanese is not like any other language. It's quite a bit of a different one. Yes. In terms of all the languages in the world, and it's one of the most one of the toughest and one of the most ridiculously old languages, because it is nearly. आप सिर्फ ओल्ड भी कहते तो चल जाता है, ridiculously old आपने थोड़ा बहुत हैवी नहीं कर दिया इसको? नहीं, actually heavy है, because China के साथ, after China it is the oldest country of Asia. China was the one that was the oldest that came and is still going on, and after that it's the Japanese. So they have large amounts of culture and they are historically rich in terms of literature, in terms of, for example, studies, in terms of everything surrounding them. And that's not only the reason, and Japanese is just a very interesting and just a very nice language. ये तमाम चीजें जो कि obviously ये आपको ट्रैक भी करी होती है. अच्छा, कभी ऐसा होता है, अगर आपके काम के बारे में सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन करवाने की भी हमें भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एवरीबडी नोज यू, और बहुत यंग एज में माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की भी दे. अच्छा, ऐसा कभी फील होता है क्लास के अंदर, जिस तरह आपने बताया आपको इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्रिकेट खेलें, कोई और स्पोर्ट्स खेलें, या बहुत ज्यादा गेम्स में, आप बहुत ज्यादा अपनी स्टडी में, एजुकेशन में और इन चीजों में आप होते हैं, कभी फील होता है अपनी ही जनरेशन से जनरेशन गैप? बिकॉज आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, आप उन दोस्तों के अंदर उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनसे रिलेट ही नहीं कर पा रहे. सो कभी ऐसा फील होता है कि हाँ मैं शायद अलग हो गया हूँ, आइसोलेट हो गया उनसे? First of all, I'd like to correct you. Isolated नहीं feel होता. We are able to connect very well. As humans, we are social monkeys and we like to talk to other monkeys. It's easy. But in terms, we are not monkeys, we are humans. So we are much more smarter than that. Upon entering a conversation, हमें पता चल जाता है कि conversation क्या है. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई कॉमेडियन होता तो यहाँ पर ये बातें नहीं होती, यहाँ पर हा 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 बड़ी बड़ी हंसियाँ चल रही होती. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बट दैट्स जस्ट इट, दैट देयर वुडंट बी एनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. So as human beings, we understand the topic and the topic of discussion, and so we change to that. So I'm very well able to understand them. But generational gap नहीं feel होता. I would most likely say disappointment feel होती है काफी हद तक, because of their you can say unachievable ideologies that they have, that they'll become rich, that they'll do this, they'll do that, but they're not ready to do anything. That's right. And trust That's me, absolutely right. As children, I've seen lots of people that say मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा. सिर्फ बच्चों में नहीं, at a very young age as well, लोग यही अमीर and होना it's है, still पैसा very कमाना है. much inspiring to see children that are way more understanding and way more about their future, which is not something that we saw in the past, because
a few years ago or even 10-20 years ago बड़ों को ये नहीं पता होता था डिग्री के बाद कि करूँ तो करूँ क्या. They have a goal but they lack the conviction, they lack the will, they lack the ability to do and to perform in their actions, which I did not, and I believe that they can work upon it and so they can perfect their अच्छा स्नेह, वो जो अभी कुछ देर पहले एक बात हुई कि हमसे सवाल होता था ना कि बड़े होके क्या बनेंगे, तो आपसे भी सवाल होता है? काफ़ी हद तक जी बिल्कुल सवाल होता है और sometimes I'm like thinking कि among these many jobs कौन सा होगा that would be my best priority. So being said, my best priority is journalism. Okay. Because if you know, I was more of a planner all along. Because radio was not actually something that I just fell into. It was a step for me, a step which will grant me the ability to speak. The word selection, the vocabulary, the understanding, the ability to perform and to have the communication skills required in front of the camera. And it was just only a matter of time that I left the radio and went towards journalism. And currently that's what I'm working upon. And there was a lot more to be worked upon, and I believe that by the time that I'm old enough in my 20s and I have like a PhD in such field, I'll be able to perform way well and perform quite nicely in terms of what I am today. दिन में उर्दू भी बोलते हैं किसी वक्त में? ज़्यादातर इंग्लिश बोलता हूँ because it's an easier language for me. उर्दू से आसान लगती है? उर्दू से आसान जी बिल्कुल उर्दू से भी आसान लगती है? Let me tell you something interesting. I'm very bad at Urdu and Pashto. अच्छा. जी बिल्कुल. Because वजह ये है कि my parents, since I was living in Peshawar, and my parents didn't want me to learn Urdu, they didn't want me to learn Pashto as their first language, even though it was my mother tongue. They wanted me to learn Urdu first. Try करते हैं आज उर्दू में बात करके. जी बिल्कुल. उनको अच्छा ठीक है. उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं सबसे पहले उर्दू सीखूं, फिर बाद में पश्तो. आज उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं. एक चैलेंज दे देते हैं शोएब, अगर आप 2-3 उर्दू के अल्फाज आप अगर हसनैन को बताएं और वो गेस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करें कि उनका मतलब क्या, अपने अंदाज में कि बच्चे किस तरह उनका मतलब लेते. मैंने आप नहीं समझ आ रहे. मेरे 1-2-3 लफ्ज ना, मतलब क्या उर्दू के लफ्ज? हाँ उर्दू के कोई भी लफ्ज वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. तलफ्फुज नहीं, वो मोहतरम तो तलफ्फुज नहीं, जस्ट ये कि आप थोड़ा सा इलैबोरेट जो आपकी समझ में आ रहा है. हम एक टेस्ट लेते हैं. मुश्किल आसान ना, अच्छा आसान पे जाना. नहीं आसान तो मेरे अच्छा यहीं से कुछ देख लेते हैं. मुझे अब इस वक्त कोई इस तरह लफ्ज कुछ माइंड में नहीं. You know, fun fact, I left like my physical school क्योंकि मुझे उर्दू के अंदर I was not very good at all. मुनफरिद, इसको कैसे इलैबोरेट करेंगे? मुनफरिद, different. यानी आपको आता है इसका मतलब उर्दू आती है? नहीं इतनी तो आती है. I've worked as a radio jockey, मैंने इतना थोड़ा सा तो आता है. तो वहाँ भी अंग्रेजी थी? वहाँ पे अंग्रेजी नहीं थी उस वक्त में. मैं उस वक्त में भी उर्दू बोलता था, but I was not very confident in that, and that was quite a long time ago. अच्छा जी, लैंग्वेज है जी, वो तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है. मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एग्जैक्टली. इस तरह नहीं है that I've left Urdu, it's not that, but it's more of कि मैं it takes me a lot more to understand, to use a bit better Urdu. ठीक है. एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूँ सबीन के, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं आप, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करते. मैं आपका इंस्टाग्राम देखा था, आपने सिर्फ एक शख्स को फॉलो किया, दैट्स इट. आपने और किसी को फॉलो नहीं किया. क्या ऑब्जर्वेशन है? Quite nice talking abilities. I'm very well aware that you'd be very well with your private life. But jokes aside, other than that, I believe कि इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है. सबसे पहली वजह है क्योंकि मेरी टीम, क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करता तो उनकी मर्जी है. whomever they follow, whomever they do not, it's not. आप खुद फॉलो नहीं कर रहे? मैं खुद नहीं करता. I don't use जी खुद मैं नहीं यूज करता because I'm not a big fan of social media. It diverts me from my original goal, and it's also a very time consuming thing to do. So लोग समझ जाए जी वो खुद यूज नहीं कर रहे, तो अगर आप हसनैन को मैसेज करेंगे, बात करना चाहेंगे, टीम से बात होगी, हसनैन से नहीं होगी. Am I right? बिल्कुल. Perfect. Thank you so much हसनैन. नाइस टॉकिंग टू यू. वक्त मुख्तसर था, लेकिन जाहिर है हमारी कोशिश है कि हम आगे बढ़े. इस राइजिंग पाकिस्तान में कुछ और मेहमान हैं जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे. इस ब्रेक के बाद मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे और उमैर जसवाल होंगे हमारे साथ. स्टे विद अस विद राइजिंग पाकिस्तान.
माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सोना सेंटर, हमारा अज़्म खुशहाली हरदम। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। पूरा शहर बहुत जल्द स्मॉग से भर जाएगा। माहौल की आलूदगी की सतह तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये लेवल्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? Pollutants, attack! माही तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर पे मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। बात होगी बच्चों की तालीम की, सेहत की, उनकी ग़िज़ाइयत की, साफ पीने के पानी की, उनकी हिफाजत की। बात होगी पाकिस्तान के बच्चों की उड़ान की। ज्वाइन करें पीटीवी और यूनिसेफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बच्चों की मदद करें ताकि वो अपनी जिंदगी की उड़ान भर सकें। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है।
दरअसल एक खूबसूरत तरतीब का नाम है। यही तरतीब अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा हो तो जिंदगी मजीद खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं प्रोग्राम सारे सुर हमारे, जिसमें हम पेश करेंगे सुरों से मुज़य्यन नामवर शोरा का कलाम। घर बैठे आप सीख सकेंगे मौसीकी की बुनियादी तालीम। आपको इस प्रोग्राम में गाना गाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि हम मुतारिफ करवाएंगे आपको और आपके टैलेंट को। पेश करेंगे ट्रिब्यूट अपने अजीम फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों। सारे सुर हमारे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था हमने कि उमैर जसपाल होंगे हमारे मेहमान, यानी जब हम मौसीकी की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, अच्छा इसके साथ साथ एज ए ह्यूमैनिटेरियन वर्क हम उनका देखते आ रहे हैं और ये तो बहुत से डोमेन्स में नजर आते हैं। फिटनेस फ्रीक भी हैं, मोटरसाइकिल पर निकलते हैं तो पहाड़ों पे निकल जाते हैं, यानी ट्रैवल के बड़े शौकीन डरा हैं। देते हैं अक्सर तस्वीर देखकर कि यहाँ कौन मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो अपनी बाइक लेते हैं और निकल पड़ते हैं। जनाब बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी है और आज मैंने पहले से रिक्वेस्ट कर ली थी, मैंने कहा नहीं कहना मेरा गला खराब है, नॉट टुडे। जो अक्सर हम सिंगर्स को बुलाते हैं कहते हैं जी गाना हमें सुनाना है, देयर लाइक नो 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 आज नहीं, आज हमें गाना भी सुनाएंगे और खूब यहाँ पे महफिल सजेगी। तो उमैर जसपाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अर्ली राइजर तो आप नहीं होंगे? नहीं, आई एम डेफिनेटली आई एम एन अर्ली राइजर बिकॉज चेंजेस विद टाइम। जब हम काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, सही क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जितने क्रिएटिव दोस्त हैं वो रात को काम करते हैं। But when we're planning on shooting, going on the road, traveling plan कर रहे होते हैं, then sunrise to sunset is the time, so we have to wake up really early. That's it. कितने घंटे जिम को देते हैं? मैंने मिनट नहीं पूछा, मैंने घंटों में पूछ लिए, बिकॉज आप उनकी पिक्चर्स देखिए माशाल्लाह, 6 पैक, वेरी फिट माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने घंटे रहते ही जिम में है? I think it's around 3 hours a day. 3 hours a day. 3 hours a day. ओके और इसमें कोई होता है चीट मील डे आपके? Absolutely, actually हम लोग कोशिश ये करते हैं। I have a place here that I've built with all my heart. Yes. और हमारा पर्पस बनाने का उसको यही था कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म करना है और लोगों को गाइड करना है इन द राइट डायरेक्शन। लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान दे अंडर ईट, स्पेशली वुमेन। उन्हें डर लगता है कि खाना तो ज्यादा खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, फिर उन्हें होता है वेट्स उठा लेंगे तो मसल्स बन जाएंगे। सो यू नो ब्रेकिंग ऑल मर्दों को भी होता है। हाँ लेकिन मर्दों को भी होता है। वो तो वेट उठाते हैं कि मसल बने ना। वो उनको तो होता है कि अगर वो उठाएंगे तो मसल्स बन जाएंगे, वो इसलिए उठा रहे होते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी। सो वी ट्राई एंड गाइड एवरीबॉडी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। बिल्कुल। अच्छा कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो हमने बात की ना फिटनेस की, तो देखेंगे माशाल्लाह सुपर फिट, अल्लाह ने इसी तरह फिट है। कुछ और पिक्चर्स में मैं चाहूंगा दिखाएं, चूंकि जब हम उमैर जसपाल की बात करें बहुत से उनके काम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे हमने जिक्र किया ट्रैवल का भी। अच्छा ये जो इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सी ये जो एनिमल्स के हवाले से काम करते आए हैं, एनिमल्स वेलफेयर के हवाले से काम करते हैं, कुछ एम्बुलेंसेज उनके लिए कि जिस हम न्यूटर कर रहे होते हैं डॉग्स को, या फॉर दैट मैटर अगर कहीं स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको किस तरह रेस्क्यू करते हैं, तो ये इनका काम है। इसी तरह बहुत से और जब इनका काम आपसे शेयर करेंगे, तो ये जिस तरह से अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए इन्होंने काम किया, कि वो चाहे एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हो, चाहे कि एक इदारे के तौर पर कर रहे हो, किसी को साथ मिलाकर कर रहे हो, कलेक्टिव एफर्ट्स दिखा रहे हो कि बच्चे कौम का सरमाया भी हैं, मुस्तकबिल भी हैं, कैसे उन पर इन्वेस्ट करना है, एंड दैट्स हाउ ही इज डूइंग। तो कुछ पिक्चर्स थी, हमने सोचा आपसे हम शेयर भी करते हैं। कमिंग बैक टू उमैर, उमैर वैसे म्यूजिक में हम देख रहे हैं लास्ट ईयर आपकी नई एल्बम आई थी, और अभी कुछ काम चल रहा है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, म्यूजिक इज ऑलवेज हैपनिंग, एंड आई थिंक फॉर द लास्ट 1 year थोड़ा सा पब्लिक सेंटिमेंट इन द मैसेज और आप यूथ में देखें, सो इट वाज रियली डाउन। हम लोगों की जो पल्स होती है वो यूथ ऑफ द कंट्री के साथ चलती है, एंड इन द लास्ट 1 year वी सॉ कि जो सारी अटेंशन थी वो न्यूज़ पे थी। उस टाइम जो सारा
main focus tha was news channels. Yes. And everything that was coming in between was getting lost because of a lot of things that were happening in the country. But I think things are back on track. Everything is back to normal and things are moving in the right direction. We have great indicators of things going in the right direction. So is wajah se, you know, we're just planning on in winters, I think December mein, you'll be hearing more music from us. Okay. And there's a lot more music from another project coming earlier next year. So music is always happening. It's never stopping. Obviously, मेयर का गाना आते तो लोग पहले इंतजार कर रहे थे announcement के बाद टीजर आता है तो हमें यही होता है कि कुछ बहुत अच्छा जो है वो सुनने को हमें जरूर मिलेगा. और हैप्पी सॉन्ग्स होंगे आप? हाँ एब्सोल्युटली हर तरह के सॉन्ग होंगे, हैप्पी भी होंगे और सैड भी होंगे. बहुत मुबारक को शादी की, बहुत अच्छे के बाद इन पर्सन आपसे आज मुलाकात हो रही है. तो शादी की अनाउंसमेंट आपने की, बड़ी खुशी हुई जिंदगी में आगे बढ़ना. आपको एक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बड़ी एक अच्छी बात होती है. सो मुबारक को. कैसा चल रहा है? Alhamdulillah, God has been very kind, and I think you know, God takes you through a journey and brings you to the right place. And आप उस सही जगह तक जब पहुंचते हैं तो जो रास्ता होता है आपको उस जगह तक पहुंचने के लिए वो इसीलिए होता है कि आप समझ सकें और सही जगह पहुंच सकें और उसको अप्रिशिएट भी कर सकें, उस सही जगह को अप्रिशिएट कर सकें, उस टाइम को अप्रिशिएट कर सकें. बिल्कुल. सो यू नो, व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट, उस टाइम में हर किसी को कहता हूँ, मुझे बड़े लोगों ने, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस टाइम एंड टॉक अबाउट द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी. A lot of them, like millions of my fans and people who are not even my fans. They reached out to me from all over the world. और उन्होंने वो बड़े परेशान भी थे और I kept telling them that you know इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी बेहतरी होती है. और and now they're so happy. I got so overwhelmed with the love and response that we got from just posting one picture of the announcement. That I'm very happy that people out there they love me and I'm in their prayers, and I always tell them keep me and my family in your prayers. Allah हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे. So happy for you. Yes, उस एक पिक्चर पे कमेंट्स ऐसे ही थे ना कि शादी कहाँ हुई, भाभी क्यों नहीं आपने दिखाई. तो आपने बहुत ज्यादा इसको अभी तक छुपा के रखा हुआ है. छुपा के रखने की बात से अलग जो बात है, I think over the years I've been raised and grown up in a very different you know, I have a very different upbringing. Okay. I don't believe कि आपकी जो personal life होती है उसकी आपकी professional life को you know cross over करना चाहिए. Not saying that कि there's something wrong with it, but I believe that हमारी youth और हमारी population अब जिस point पे पहुंच गई है, एक होता है ना कि तनकीद बराए तनकीद. Yes. हर बात पे तनकीद. आप जब अपने घर का अपने अभी आजकल नोटिस करें the way content is being created, stars, everything matters. क्या शादी, क्या खाया, क्या नहीं खाया. When I was growing up, believe me, I'm telling both of you, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो मेरे stars हैं या मेरे idols हैं वो रोटी क्या खाते हैं, वो कपड़े क्या पहनते हैं, उनकी किसकी शादी हुई है, उनके कितने बच्चे हैं. Obsession है obviously. Yeah, so I think people are getting too obsessed with personal lives of other people. And a lot of people open that door and then they blame everybody and then फिर पछताते हैं, फिर बोलते हैं यार कि देखो ये, मैं कहता हूँ आप ये दरवाजा खुद खोलते हैं. And if you can keep that door closed and if you can just keep engaging people with your work, which should be paramount, and all the good work that you do, and I do a lot of work, so you know with all that work I want to be known for that rather than you know where I'm married, who I married, and वो क्या करते हैं और वो सामने क्यों नहीं आते. And also you know you have to respect the other person as well. True. If the other person respects their privacy, then I 110% stand by them. और obviously personal choice. आप अगर जो आप public figure हैं, आप public property नहीं है, तो आपकी personal life है और आप choose करते हैं कि आप ये दिखाना चाहते हो और आप ये नहीं दिखाना चाहते. Then obviously criticism तो है, उनको तो social media obviously वहाँ पर. Social media has become such a interesting space. A lot of people reach out to us and say so many negative things, so many sometimes demeaning things, and sometimes and आप अगर उनसे सिर्फ प्यार से बात करें ना तो ठीक हो जाते हैं. तो you basically realize कि ये सिर्फ this was just an attempt to get some attention. A lot of people just want you to respond to them. Okay. अच्छा मुझे लगा कि उस टाइप को ठीक भी हो जाता होगा. नहीं और अच्छा ठीक भी बहुत सारे लोग होते हैं. They say we're sorry, we just wanted a reply. आपसे बात करनी थी एक बार. ये कौन सा तरीका था भाई? And I'll always tell you, a lot of people sometimes they say we get a lot of hate. God has been very kind. I've never been in that position that I've received any hate or something like that on a mass level. But जिन लोगों के साथ हुआ भी है, मेरे दोस्तों के साथ जिनके साथ होता है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ
तुम जब सड़क पे निकलते हो तो तुम्हें लोग क्या कहते हैं, कहते हैं प्यार। मैंने कहा तो ये हेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये हेट सिर्फ सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है। यू नो व्हाट यू रिसीव एट द एंड ऑफ द डे इज ओनली लव। कभी कोई आपसे इख्तिलाफ करता होगा ना तो आपको सड़क पे आके रोक के आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, until and unless you're a public office holder और आप वो फिर एक डोमेन ही डिफरेंट है। यू नो उसके अंदर भी हमें तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। हमें वो भी नहीं करना चाहिए जो आजकल हो रहा है। बट आई बिलीव के पीपल जस्ट वांट अटेंशन एंड दे वांट लव at the same time, so you just need to know how to deal with them. And being around for a long time, I think I finally know how to deal. Finally, ये भी मुझे लगता है ये भी जरूरी नहीं है कि आपने डील करना है, कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए जैसे अपने आप को खुद डील करें, जिंदगी उनको डील करें, उनके घर वाले उनको डील करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बड़ा इम्पोर्टेंट है। बट मुझे एक और चीज भी होती है कि हमारी यूथ के पास इतना टाइम है टू थिंक नेगेटिव, टू हेट। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हेन आप जब बड़ी हो रही थी, तो डू यू रिमेम्बर कि आपके पास इतना टाइम था कि हमने उसको हेट करना? नहीं, ऑनेस्टली एक ऐसी रूटीन होती थी ना। और सोशल मीडिया का तो हमें भी बड़ा टाइम, अब रुकेंगे इतने बड़े, हम इतने बड़े नहीं है, लेकिन एकदम से दौर जो है वो फौरन से हमने within the last 10 years things have drastically changed. You know, there's this new generation of people on social media जिनका एक तो हर चीज के ऊपर ओपिनियन है, which is fine, you're allowed to have an opinion, but कोई कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन किसी का नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है। वी लाइक बस बुरा कह दो, ऐसे कह दो और अगले बंदे को इतना परेशान कर दो और लोग हो जाते हैं। सम पीपल आर नॉट स्ट्रांग, सम पीपल आर नॉट यू नो दैट वेल इक्विप्ड। इमोशनल रेगुलेशन क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका काम मुतासिर होता है, उनकी पर्सनल लाइफ भी समटाइम्स मुतासिर सब इंसान है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सबको हिट जरूर कर जाती है, और आप ज्यादा परेशान होते हैं कि दूसरे के लिए कोई दूसरा अपनी जिंदगी में खुश होता है, उतना परेशान होता है। यू नो आई ऑलवेज से बी काइंड। मुझे किसी बड़े ने समझाया था कि आपको अगर कोई चाहने वाला मिलता है तो वो शायद आपकी जिंदगी के 1 मिनट के लिए मिलता है। आपकी 70-80 साल की जिंदगी अगर वो बहुत अच्छी लंबी जिंदगी है तो वो उसमें 1 मिनट के लिए मिलता है आपसे। आप उस 1 मिनट में उससे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, ही विल रिमेंबर दैट रिएक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो देन इट डजंट रियली मैटर कि आप उस दिन क्या फील करें। इट हैपेंड टू मी सो मेनी टाइम्स। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, आप अपनी फैमिली के साथ परेशानी में, इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में होंगे और लोग खड़े होंगे साथ, वहां भी पहुंचे होते हैं लोग, कब्रिस्तानों में नहीं छोड़ते। सो आई थिंक मैनर्स ओवरऑल डाउन हो रहे हैं और इसको इस पर काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। अच्छा, बहुत सी बातें थी और लेकिन है म्यूजिक जरा कुछ गाना चले जैसे आपके, क्योंकि आज हमारा भी देखिए यहाँ पे पहला शो है और गाना तो नहीं होगा, गाने के लिए मैं आपके लिए दोबारा आऊंगा और मैं अपने बैंड के साथ आऊंगा। ये देखा मैंने पहले कह दिया था, ये मेरी पहले से कमिटमेंट। कमिंग टू ट्रैवल थिंग, कितना ट्रैवल कर रहे हैं? बिकॉज़ हम पोस्ट देखते हैं आपकी बाइक पे स्पेशली, आप बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। सो हाउ फ्रीक्वेंट यू ट्रैवल? So not as frequent as I would want to, as every traveler would say. You know, there's a time when this is all that you want to do, but जब अल्लाह ताला आपको जिंदगी में सब कुछ देता है तो फिर आपको टाइम की जो है ना वो किल्लत हो जाती है। बट ये बड़ा एक यू नो इट्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन, क्योंकि आपको टाइम जो चाहिए होता है टू ट्रैवल। बट आई स्टिल मेक श्योर that every year 2-3 trips I do on my own, solo trips. I get out, I get lost somewhere in the mountains, somewhere in the desert, and it's always been an amazing experience. And biking is something that has been so close to my heart over the years. बड़ा खास बाइक है आपका। God has been very kind. I started off with a very small little bike, वो दूध वाला बाइक होता था, उससे Yamaha 100 उससे शुरू किया था, and then you know we just kept moving up. And अब इतना मजा आता है, there's a whole community, a lot of people, but again solo riding का उससे भी ज्यादा मजा है। And I think the way you see your country, the way you see the environment, the landscape, वो मेरा तो catharsis है, मेरी तो therapy भी वही है। I think the inside of my helmet has seen more tears of realization. I've connected much closer to God being on a bike, because everything else tunes out और आप जिस थॉट में होते हैं वो थॉट चल रही होती है। कौन सी जगह ऐसी है पाकिस्तान में जहाँ पर जाकर बहुत सुकून मिलता है, जहनी सुकून, कि कभी डिस्टर्ब हो उस जगह पर चले जाएं और बार बार जाना? आई थिंक इस तरह तो पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है जगहों से, लेकिन लोगों को शायद यकीन नहीं आता, बट आई टेल देम, आप लोगों ने बलूचिस्तान अगर नहीं देखा हुआ, सो यू हैव नो आइडिया कि जीवनी का सनसेट क्या है और खुजदार हाईवे का सुकून क्या है, और यू नो खुंजराब की शाम कैसी है, मतलब ये फार ऑफ प्लेसेस हैं, चिपुरसन वैली कैसी है, नेशनल पार्क नेशनल पार्क कैसा है। सो नॉर्थ टू साउथ
آپ کو ایسی ایسی جگہ ملتی ہیں وہ جہاں پہ آپ بڑے انسگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں, where you go and کیونکہ آپ کو you see God in everything. آپ کو خدا ہر چیز میں نظر آتا ہے, خدا اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر نظر آتا ہے آپ کو. بٹ کچھ جگہوں پہ جا کے نا you're the only one there. And all you see is God's creation around you. And you're like, yaar, یہ کسی انسان کا کام نہیں. And you start feeling so connected to nature, to God, spirituality, کہ کا میٹر آپ کا اتنا ہائی ہوا ہوتا ہے, you're thinking things differently. And I wish everyone could do it. I wish کہ سب کریں. We talk a lot about tourism coming from outside and لوگ آئیں اور پاکستان کو ڈسکور کریں. میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ ہمارے لوگ پاکستان کو ایکسپلور, ہم نے خود نہیں کیا اور ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئیں گے, ضرور آئیں بالکل, لیکن ہمیں خود بھی کرنا ہے. کیے ہوئے ہوتے ہیں نا اس ملک جانا, اس میں اپنے ملک کو ہم ایکسپلور نہیں کریں. We have no idea. ہمیں اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہے جب باہر سے کچھ ولاگرز آئے ہیں اور کوئی ٹریول ڈاکیو سیریز بنانے والے لوگ آئے ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کو ایک اچھے طریقے سے شوٹ کیا ہے, تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ واو یہ ہمارا ملک ہے. goes without saying, I think there's a huge gap as well in the fact کہ ہماری اتھارٹیز کو چاہیے کہ ان لوکیشنز کو اور ان جگہوں کو اکوپ کریں ود بالکل مور انفراسٹرکچر تاکہ ایکسیسیبل ہو, لوگ جا سکیں فیملیز کے ساتھ. وی ہیو 2 minutes, تو میں تھوڑا سا کامنٹ لینا چاہتا تھا. جو ہیومینیٹیرین ورک آپ کا اسپیشلی اینیمل ویلفیئر پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو وہ کیسے آئیڈیا آیا, کیسے اس پہ کام کر رہے ہیں؟ سو بیسکلی وی ہیو دس ہیوج ایشو ان دا کنٹری, جہاں جب مجھے اس بارے میں پتہ لگنا شروع ہوا کہ کسی بھی جانور کے ساتھ ظلم کرنے کا جو جرمانہ سرکاری ہے وہ میرے خیال سے 50 سے 500 روپے ہے. اینڈ یو کین بی ایز مین ٹو دیٹ اینیمل. اور پھر اس کا میں نے ریئیکشن دیکھا ان دا میسز. یہاں پہ کوئی بچہ اگر کسی جانور کو مار رہا ہے یا پتھر مار رہا ہے تو لوگ ہنستے ہیں, لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں. بے زبان جانور ہیں, ان کو ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے, اور ان بے زبانوں کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہی ہے. بالکل. اور بہت آسان ہے, ہم ٹرکی کی ایگزامپل دیتے ہیں, ہم دنیا میں ہر ملک کی ایگزامپل دینے میں تو ہم ماہر ہیں, لیکن وہ ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے. سو وی ڈڈ دس بینجی پروجیکٹ, اینیمل ویلفیئر پروجیکٹ, جس کے اندر ہم لوگوں نے 9 ایمبولینسز انٹروڈیوس کروائیں, جس میں جو بھی ہائی پاپولیشن ایریاز تھے اور اسٹرے ڈاگز, ہم وہاں جاتے تھے, ان کو ٹریپ کرتے تھے, ان کو نیوٹر کرتے تھے, ویکسینیٹ کرتے تھے, ریلیز کرتے تھے. اینڈ اٹس اے پروگرام جس کے تھرو in another decade or so ان کی پاپولیشن خود کنٹرول ہو جائے گی, اور یہ ریبیز فری ہو جائیں گے, اور یہ ڈوسائل بھی ہو جائیں گے تھوڑے سے. بٹ آن اے ویری بیسک لیول کہ ہم اگر لوگوں کو کہنا ہے ان کو مارو نہیں, تو لوگوں کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے, وچ از ویری سیڈ. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں وہ کیمل والا کیس بھی دیکھا. اب وہ کیمل بھی ہماری شیلٹر پہ ابھی کراچی میں, ہی ور ٹیکنگ کیئر آف کیمل. اب کیسا ہے وہ؟